Friends, after studying the concept of photoelectric effect, let us see what are the experimental observations done by Hertz, and based on those observations we will give the inferences that the results will be given. Now, in the photoelectric effect, what it was? There was a clean metal surface. S. There was a thin metal strip called collector, which was collecting the electrons. The entire arrangement was placed inside a evacuated glass tube, which was called phototube. Okay. Then this arrangement was connected to a battery. Such that surface is made negative and collector is made positive. To measure the electric current, we put a galvanometer here. We use a galvanometer here to measure the value of current. Okay. Different potentials are applied on the collector and we measure the current. That's what the experiment was done. For different voltage, current was measured and then a graph was plotted. Graph of photoelectric current, capital C, against potential on collector. V. बराबर है. क्या किया? On x axis we take potential on collector V. On y axis we take the photoelectric current C. Okay. ये 0 है. Positive potential on the collector, negative potential on the collector. Okay. Now क्या किया? पहले इंसिडेंट लाइट लिया of intensity I1. Let's of intensity I1, frequency F1, बराबर है. एंड फिर पोटेंशियल चेंज करते गए, करंट नोट करते गए. पोटेंशियल चेंज करते गए, करंट नोट करते गए. 0 से +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन. दूसरी तरफ -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. ये एक्सपेरिमेंट करा, चालू किया. We know the observations. Okay, when the collector is made positive, the current almost remains constant. At an intensity I1, frequency F1, collector को पॉजिटिव रखें तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट remains constant. बराबर है. इंटेंसिटी I1 रखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी F1 रखा हुआ है. फोटोइलेक्ट्रिक करंट almost remains constant, it is positive. And when made negative, photoelectric current decreases and becomes 0 at a certain potential. ये हो गया stopping potential. Okay. Intensity I1, frequency F1, we find that this type of graph is obtained. फिर frequency बढ़ाया, keeping the intensity same, frequency is increased. बराबर है. अब frequency increase करेंगे and फिर same values of voltage and current is noted. बराबर है. क्या किया? इंटेंसिटी सेम रखी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज. इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें, ये लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी तो क्या देखने को मिलता है? द फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टिल रिमेन्स कांस्टेंट. तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वही का वही मिलता है. यानी ऑन चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट चेंज. ऑन चेंजिंग द इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट चेंज. बराबर, ये देखने को मिला. यानी अगर यहाँ पे देखें तो टेबल इन्फ्रेंस को जैसा बना सकते हैं, टेबल को जैसा बना सकते हैं. सी की वैल्यू फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी चेंज किया ना, फ्रीक्वेंसी एफ के साथ वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट नॉट सी. फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी बदली तो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिड नॉट चेंज. पर जब नेगेटिव किया, कलेक्टर को नेगेटिव किया तो देखने को क्या मिला? फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस एंड बिकम 0 एट अ हायर वैल्यू. यानी फ्रीक्वेंसी F1 पे अगर V01 है तो फ्रीक्वेंसी F2 पे विल गेट अ हायर वैल्यू V02. यानी कि इंटेंसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया, फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिड नॉट चेंज बट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिड चेंज. स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 चेंजेस. यस, इट चेंजेस. तो व्हाट यू फाइंड दैट व्हेन फ्रीक्वेंसी, अच्छा इसको कंफर्मेटरी टेस्ट फ्रीक्वेंसी F3 लेके किया, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, सेम इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी F3 किया, V चेंज करते गए, C नोट करते गए, V के वही सेम वैल्यूज, V got the same thing repeated,
photoelectric current did not change, but became 0 at a higher value V03. यानी एक बात तो पक्की हो गई कि with the change in frequency photoelectric current does not change, but stopping potential does change. On changing frequency of light, photoelectric current is not affected, but stopping potential is affected. यानी stopping potential depends on frequency of incident light, while photoelectric current does not depend on frequency of incident light. Okay, ये ऑब्जर्वेशन मिल रहा है हमें. फिर another set of experiment keeping intensity I2 greater, higher intensity लिया, higher intensity लिया यानी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ाई, मोर इंटेंस बनाया लाइट को, फ्रीक्वेंसी f1 रखा एंड फिर सेम वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल. यानी आप ये सिचुएशन ये देखें तो क्या कंपेयर होगा, फ्रीक्वेंसी सेम इंटेंसिटी इंक्रीज. ये क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी सेम इंटेंसिटी इंक्रीज. तो ऐसे केस में ग्राफ कैसा आया, तो हायर इंटेंसिटी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट गोज हायर, हायर इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट गोज हायर. मतलब के विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अगर चेंज किया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज चेंज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज हुआ. यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी बट नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी बट नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. बराबर, ये हो गया. फिर वही हाई फ्रीक्वेंसी लिया एंड फिर प्लॉट किया V वर्सेस C, तो सेम थिंग देखने को मिला. फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी बढ़ा है तो भी सेम इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी पे, पर सरप्राइजिंगली बिकम्स 0 एट द सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल V01, फ्रीक्वेंसी f1 की. मतलब कि फ्रीक्वेंसी f1 रख के इंटेंसिटी बढ़ाया, नो इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, नो इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल. रिपीटेड फॉर f2 सेम सिचुएशन, फॉर f3 सेम सिचुएशन. ये अपने को ग्राफिकल ये ऑब्जर्वेशन मिला. यानी ऑब्जर्वेशन में क्या मिला देखने को कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी. फोटो इलेक्ट्रिक करंट obtained depends on intensity of incident light and not on frequency, while stopping potential depends on frequency and not on intensity of incident light, and not on intensity of incident light. Clear? अब what does photoelectric current show? Photoelectric current shows number of photoelectrons emitted. कितने photoelectrons emit हुए वो देता है. बराबर है, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी में चेंज करो तो भी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डू नॉट चेंज. इंटेंसिटी में चेंज करो तो डेफिनेटली विल चेंज. यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे दैट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड नॉट द फ्रीक्वेंसी. जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या इंडिकेट करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिकेट्स मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिकेट्स मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं दैट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी. द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी. क्लियर? तो ये ऑब्जर्वेशन मिला, उसके ऊपर जो इंफरेंस आ रहा है C एंड V0 का जो मिला वो ऑब्जर्वेशन, उसी ऑब्जर्वेशन को नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड और मैक्सिमम एनर्जी के टर्म्स में लिखो तो ये इंफरेंस हो गया, रिजल्ट्स हो गया ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यहां पे हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ. उन्होंने क्या प्रूव किया है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ क्लीन मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ क्लीन मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. कलेक्टर बीइंग पॉजिटिव अट्रैक्ट्स दोस इलेक्ट्रॉन्स एंड thus forms the photoelectric current. यानी लाइट से अपने को करंट मिलता है. दैट्स व्हाट हर्ट्ज गिव. बेसिक कांसेप्ट क्या था यहाँ पे कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्टेन्ड. यानी हमको इलेक्ट्रिसिटी मिली फ्रॉम लाइट. अब लाइट इज सच अ सोर्स व्हिच इज नॉट एक्सपेंसिव फॉर अस. फ्रीली अवेलेबल सनलाइट मिलता है पूरे दिन. रात को हमने ट्यूबलाइट जलाया, बल्ब जलाया तो भी हमको लाइट तो मिल रहा है. तो लाइट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. यूजिंग दैट वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. ये सोलर पावर की तरफ लीड करता हुआ कंसेप्ट है. 1887 में हर्ट्ज ने पहली बार ये डिस्कवर बताया, ऑब्जर्व किया था और हमारे सामने रखा था ये फिनोमेनन. ओके, तो यानी ये तो पक्का हो गया कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट करंट इज ऑब्टेन्ड. फोटो इलेक्ट्रिसिटी is a benefit for us human being getting electricity without any major use of resources. It's a renewable source of energy sort of thing. Okay, solar power में से मिल जाए अपने को, बराबर है. तो it's a one of the very good experiments beneficial to mankind. अब हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट तो किया
एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऊपर से ऑब्जर्वेशंस लिए, ग्राफ बनाया, ऑब्जर्वेशंस लिए, कंक्लूजन दिए एंड उसके ऊपर इन्फ्रेंस, फाइनल रिजल्ट्स आए। क्लियर? हर्ट्ज का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर। अब नाउ व्हाट वी रिक्वायर, वी नो दैट इन फिजिक्स only doing an experiment is not important. You need to give a theoretical explanation for it. Only experiment is not sufficient. You need to give a theoretical explanation for it. Only theory is not sufficient. You need to give a practical proof of it. Chapter number 8 में देखा था, Maxwell proposed a theory that light is an electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave. पर जब तक practically obtain नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है उसका। वहां पे था थियरी है, प्रैक्टिकल प्रूफ देना था। यहाँ पे प्रैक्टिकल तैयार है, एक्सपेरिमेंट हो गया है, वी नीड टू एक्सपेरिमेंट, वी हैव टू गिव अ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर इट। ओके, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स ड्यू टू लाइट, इट इज ड्यू टू लाइट एंड वी नो दैट लाइट इज अ वेव। तो लाइट इज अ वेव, वो ध्यान में रख के वी एक्सप्लेन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज अ वेव थियरी। यूजिंग वेव थियरी ऑफ लाइट, लेट्स एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कशन ऑफ एक्सप्लेनेशन of photoelectric effect using wave theory of light. चलो, अब ये तो हमने देखा था एक्सपेरिमेंट्स, उसमें अल्टीमेटली ये भी प्रूव किया था कि V0 डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। अब V0 का डिपेंडेंस ऑन फ्रीक्वेंसी ग्राफिकली कैन बी शोन लाइक दिस। ये ग्राफ है V0 वर्सेस f का, डिपेंडेंस ऑफ V0 ऑन फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ को जैसा स्ट्रेट लाइन आता है कि विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी stopping potential increases and the lowest value of frequency is f0, क्योंकि उससे पहले तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। अरे ये भी एक ग्राफ उधर मिला, दो ग्राफ है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्यों ऐसा? क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स ड्यू टू लाइट इंसिडेंट ऑन द क्लीन मेटल सरफेस। लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ क्लीन मेटल सरफेस and photoelectrons are emitted and they are absorbed by the positively charged collector and thus forms the current in the circuit. तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि फोटो इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल ड्यू टू लाइट एंड लाइट क्या है? वेव। तो लाइट के वेव थ्योरी को ध्यान में रख के लेट्स एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन जरूरी है। तो पहला पॉइंट, वेव इज अ ग्रेजुअल फ्लो ऑफ एनर्जी। वेव इज अ ग्रेजुअल फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी इज ग्रेजुअली फ्लोइंग। हमने देखा है चैप्टर नंबर 15 इन स्टैंडर्ड 11 दैट वेव में एनर्जी फ्लोज ग्रेजुअली, बराबर? Energy flows gradually. So when light is incident on a surface, energy is coming gradually. अब metal surface के अंदर the electron which is inside, light is falling on it and that electron is gaining energy. Due to that energy flowing, electron is gaining. जब electron की energy of electron becomes greater than or equal to stopping potential, work function, greater than or equal to work function of metal, फोटो इलेक्ट्रॉन विल गेट एमिटेड। यानी इलेक्ट्रॉन हैज टू गेट एनर्जी, एनर्जी मिल जाए कितनी? वर्क फंक्शन जितनी है उससे ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। एंड जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा मेटल सरफेस से, उसको बोलेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज गेटिंग एमिटेड फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। खास ध्यान रखें, मेटल के अंदर जो रह गया वो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं है, भले लाइट फॉल हो रही है, वो तो सिंपल फ्री इलेक्ट्रॉन है। पर व्हेन लाइट फॉल्स, इलेक्ट्रॉन हैज सफिशिएंट एनर्जी एंड कम्स आउट, तो बाहर आ गया तो उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे ड्यू टू लाइट। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रॉन विल टेक सम टाइम टू कलेक्ट दैट मच ऑफ एनर्जी। वर्क फंक्शन इतनी एनर्जी कलेक्ट करने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा, यानी एनर्जी ग्रेजुअली आ रही है, ग्रेजुअली एनर्जी इज फ्लोइंग, सो इलेक्ट्रॉन विल टेक सम टाइम टू कलेक्ट दैट मच एनर्जी एंड गेट एमिटेड आउट, थोड़ा टाइम लगेगा। यानी कि एज पर वेव थियरी दिस फिनोमेनन कैन नॉट बी इंस्टेंटेनियस, इट विल बी लिटिल बिट डिलेड फिनोमेनन, लिटिल बिट डिलेड। यानी कि जैसे ही लाइट गिरे इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली एमिट हो, ऐसा नहीं होगा। लाइट फॉल्स, इलेक्ट्रॉन कलेक्ट्स एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी हो गई तो एमिट होगा, यानी थोड़ा टाइम लगेगा, इट बी अ डिलेड फिनोमेनन अकॉर्डिंग टू वेव थियरी। पर हर्ट्ज ने क्या बोला? जैसे ही लाइट गिरी इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन बाहर, इट्स एन इंस्टेंटेनियस फिनोमेनन, बराबर है? हर्ट्ज ने बोला इट्स एन इंस्टेंटेनियस फिनोमेनन, इट्स नॉट अ डिलेड फिनोमेनन। ख्याल आया? यानी सिचुएशन क्या हुआ कि हमारे पास एक सिचुएशन ऐसा है कि नल में पानी आ रहा है एंड हमें बाल्टी भरनी है, हमने नल के नीचे बाल्टी रख दिया। द कंडीशन इज व्हेन द बकेट इज फुल यू हैव टू पिक इट अप, व्हेन द बकेट गेट्स फुल यू हैव टू पिक इट अप। नाउ फ्रॉम द टैप इट विल बी अ ग्रेजुअल फ्लो ऑफ वाटर, इट विल गो इनटू द बकेट
बकेट विल टेक सम टाइम टू फिल अप, बकेट को फुल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि नल में से बकेट भर पानी एक साथ गिरे, ऐसा तो होगा नहीं ना। इट टेक सम टाइम फॉर द वाटर टू फिल अप इन द बकेट एंड देन यू विल पिक अप द बकेट, थोड़ा टाइम लगेगा। इट शुड बी स्लाइटली डिलेड फिनोमेनन। हर्ट्ज बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं, इट्स एन इंस्टेंटेनियस फिनोमेनन। लाइट गिरी, इमीडिएट इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। हमने कैल्सी में देखा, कैलकुलेटर यूज करते हैं, उस पर सोलर सेल लगा होता है, लाइट गिरी इमीडिएटली चालू कैलकुलेटर, देर तो लगती नहीं है कि लाइट आए थोड़ी देर बाद चालू, नहीं ऐसा तो होता नहीं, इट्स इंस्टेंट फिनोमेनन। तो वेव थ्योरी बोलते हैं यार ये तो ऐसा हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, दूसरा पॉइंट, वेव थ्योरी बोलता है अगर लाइट की इंटेंसिटी लो होगी तो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मींस एज पर वेव थ्योरी इंटेंसिटी इज एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर इंटेंसिटी कम है मतलब एनर्जी कम है, क्योंकि बाकी तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, तो इंटेंसिटी कम तो एनर्जी कम। तो अगर लो इंटेंसिटी लाइट इंसिडेंट है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन विल टेक मोर टाइम, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन विल टेक मोर टाइम to get emitted out. Low intensity or low energy coming, so electron will get less time to come out. Will get less energy, so will take more time to come out. तो और भी डिलेड फिनोमेनन होगा अगर इंटेंसिटी लो हुआ तो। हर्ट्ज बोलता है सॉरी इट्स नॉट सो, द इलेक्ट्रॉन गेटिंग एमिशन, द इलेक्ट्रॉन एमिशन occurs at the low intensity of light also, but it should have sufficiently high frequency. फ्रीक्वेंसी हाई हो तो इंटेंसिटी अगर लो होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो इंटेंसिटी लाइट ऑल्सो कैन गिव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थ्योरी बोलता है कैसे होगा यार, वो तो डिलेड फिनोमेनन है, इट विल नॉट बी पॉसिबल, इट विल बी डिलेड फिनोमेनन। नहीं, हर्ट्ज बोलता है इवन अ लो इंटेंसिटी लाइट हैविंग सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी कैन गिव इंस्टेंटेनियस एमिशन। लो इंटेंसिटी लाइट में भी इंस्टेंटेनियस एमिशन देता ही है, एंड ये हमारा अनुभव भी है। हमारे पास कैलकुलेटर में सोलर सेल है, सोलर सेल मतलब सन की लाइट में ही चलेगा, धूप है स्ट्रॉन्ग तो इजीली तो चलेगा। बाकी अगर आपने ट्यूबलाइट लिया, अरे इवन यू हैव अ कैंडल, लाइटेड कैंडल, उसकी लाइट में भी कैल्सी चलता है इमीडिएटली, इट डज नॉट रिक्वायर सन, इट कैन हैपन फॉर अ सिंपल कैंडल आल्सो। एक दिए की जोत में भी ये कैल्सी चल सकता है। तो हर्ट्ज ने बोला इवन लो इंटेंसिटी लाइट गिव्स इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव थ्योरी पहले पॉइंट पे फेल, डिलेड फिनोमेनन बोलता है नहीं ये तो इंस्टेंटेनियस है। दूसरे पॉइंट में लो इंटेंसिटी लाइट में ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं वो भी नहीं है। तीसरा, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी मींस एनर्जी एंड एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। वेव थ्योरी में क्या है, एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, बराबर है, एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि ये एनर्जी का फ्रीक्वेंसी का कोई लेना नहीं है। दिस एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। पर वेव थ्योरी हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में तो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी मोर द इंटेंसिटी मोर द एनर्जी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा एनर्जी होगी, मोर द इंटेंसिटी मोर द एनर्जी, देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी। नहीं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट बोलता है कि नहीं, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भले ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा मिले, और फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस पर डिपेंड करती ही नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। वेव थ्योरी बोलते हैं एनर्जी बढ़ेगा तो इंटेंसिटी उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, वेव की इंटेंसिटी ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, पर ऐसा नहीं है यहाँ पे हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में, इट्स नॉट देयर। तो फिर हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। पूरी वेव थ्योरी को ढूंढ लो, कंप्लीटली एक्सप्लोर करो, एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी इन वेव थ्योरी इज नॉट डिफाइंड। As per the wave theory, energy has no connection with the frequency of light, frequency of the wave. Wave theory बोलता है कि energy of wave has no connection with the frequency. चारों चार पॉइंट पे वेव थ्योरी फेल्स। आगे तो कुछ और मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या है अल्टीमेट कंक्लूजन, कि वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट किया गया it could not be explained using wave theory, यानी उसका theoretical explanation wave theory से possible नहीं है। and light का तो concept क्या था, at that time predominantly it was said that light is a wave, पर light का wave theory is not able to explain photoelectric effect, यानी हर्ट्ज का ये एक्सपेरिमेंट परफेक्ट है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी है,
पर उसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इट कैनॉट बी एक्सेप्टेड, इट कैनॉट बी एक्सेप्टेड। तो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट हैंगिंग, क्यों? क्योंकि कोई थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इट कैनॉट बी एक्सेप्टेड। बराबर है, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट कैनॉट बी, हैज नो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल, देयरफॉर हैंगिंग इन एयर, गया, कोई मतलब नहीं इतना सारा एक्सपेरिमेंट करने का, इतने ऑब्जर्वेशंस के, इतने कंक्लूजन्स दिए, इसका वाइड एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, पर थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं, सो कैन नॉट बी वैलिडेटेड। ओके, तो हर्ट्ज की ये मेहनत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हैंगिंग इन एयर कुड नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट डज नॉट हैव अ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो क्या करेंगे, इस अच्छे खासे एक्सपेरिमेंट का मालिये में डाल दो, कोई मतलब नहीं है इसका। फिर तो आगे क्या, आगे एक और बंदा है ऐसा कुछ, एक दूसरा थियरी भी ऐसा है, 1887 में हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया है, बातें चली 1890 92 में। उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट नेम प्लैंक, ही वाज अ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। प्लैंक ने एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन बाय हाइपोथेसिस? इट्स अ पॉइंट गिवन और सम थियरी गिवन which is not yet proved experimentally। हिंदी में बोले तो तुक्का मारा, इंग्लिश में बोलते इट वॉज अ फ्लुक मारा उसने, कि ऐसा है, थियरी दिया उन्होंने। बराबर, फ्लुक को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज, साइंस के टेक्निकल लैंग्वेज में उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो प्लैंक हैज गिवन अ हाइपोथेसिस जिसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, जिसे हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट में अप्लाई करके देखें कि भाई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है तो ये हाइपोथेसिस चलेगा वहां पे। When a hypothesis given is practically proved, it becomes a law. When a hypothesis given is practically proved, some experiment is related which explains this theoretical point, then definitely that hypothesis becomes a law or a genuine concept. अब प्लैंक की हालत ये थी, उन्होंने थियरी दिया था, प्रैक्टिकल प्रूफ अवेलेबल नहीं था, तो प्लैंक की थियरी हैंगिंग इन एयर। यहाँ पे हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट हैंगिंग इन एयर। हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट का थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, प्लैंक की थियरी का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, दोनों हवा में लटक रहे हैं। You very well know what might have happened. Einstein, Albert Einstein, the genius fellow in physics, उन्होंने इन दोनों का काम करवा दिया। हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट चला दिया, प्लैंक की हाइपोथेसिस चला दी, कंबाइन करके। प्लैंक की हाइपोथेसिस से हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट समझा दिया सक्सेसफुली, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वैलिडेट हो गई। प्लैंक का हाइपोथेसिस का भी एक्सपेरिमेंट एविडेंस मिल गया, तो वो भी वैलिड हो गया, दोनों का काम हो गया। उन्होंने यही बोला, मैं तुम्हारा एक्सपेरिमेंट चलवा देता हूँ, तुम्हारा थियरी चलवा देता हूँ, नाम मेरा लगना चाहिए। हर्ट्ज बोले, मेरे एक्सपेरिमेंट में आपका नाम कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, योर एक्सपेरिमेंट इज योर्स, योर थियरी इज योर्स, आई विल गेट अ नेम दैट आई एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंट यूजिंग दिस थियरी। दोनों को कनेक्ट करने में मेरा नाम। तो बोले फाइन, आप कर ही रहे हो तो डेफिनेटली योर नेम। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट आइंस्टाइन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड photoelectric effect using Planck's hypothesis. He successfully explained photoelectric effect using Planck's hypothesis. He successfully explained photoelectric effect using Planck's hypothesis and got Nobel Prize for this explanation. You might be knowing about it. Einstein has got a Nobel Prize and that was for this explanation. And ये explanation कौन से effect का था? जो mankind के लिए it was highly beneficial. अब आपको उत्सुकता होगी, ये आइंस्टाइन ने ऐसा क्या जादू चला दिया, ऐसा क्या आइंस्टाइन ने कर दिया कि जिससे प्लैंक की हाइपोथेसिस भी चल गई, हर्ट्ज का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी चल गया। ऐसा क्या किया होगा आइंस्टाइन ने? अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।